टॉपिक 68 इम्प्रूविंग द इंक्यूबेटर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि हम अपने इंक्यूबेटर सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। Improving the incubator system. In order to introduce these new concepts to you, we made our system very simple indeed. The software simply recorded information about the temperature of an incubator. Let us now make the software more realistic. In our enhanced system, the software will not record the current temperature of the system, but will also control the hardware. The system will be able to respond to a request from the user to change the temperature and subsequently to signal the hardware to increase or decrease the temperature accordingly. The hardware itself will still operate in such a way as to either increment or decrement the temperature of the incubator and to signal the software each time that a change of 1 degree has been affected. यानी कि हमने ये इस चीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है बेसिकली वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे उसका काम है कि वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और जब भी 1 डिग्री की चेंज आती है तो वो ये हमें बताता है कि सिस्टम में 1 डिग्री का चेंज आया। So when the software receives such a signal, it must, in addition to recording the new temperature, send back a response, telling the hardware whether or not further changes are required to achieve the temperature that has been requested. So our new system will also behave a bit more realistically in regard to the initial temperature of the incubator. In this new system, the temperature of the incubator will not be recorded until a message is received from the hardware. Other operations on the system will not be able to go ahead until the initial temperature is set. यानी जब तक initial temperature set नहीं हो जाता तो दूसरे जो हैं वो operations जो हैं system जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि उनको जो है आगे further proceed कर सके। So you will probably already have worked out that it will be necessary for the software to record both the actual temperature of the system and the requested temperature. We will also need some additional operations. As in this figure, the UML diagram for our new software, you will notice that 3 of operations, request change, increment and decrement, have signal type. तो यहाँ पे जो हम बात करें अपने रिक्वेस्ट चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, हैव एन आउटपुट ऑफ द टाइप सिग्नल। इनकी जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली सिग्नल टाइप की है, और सिग्नल हमने एक जो है वो यूजर डिफाइंड टाइप है जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, और किस तरह से डिफाइन की वो भी आपको बताया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 3 ऑपरेशन हैं, रिक्वेस्ट चेंज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमारे जो है आउटपुट दे रहे हैं सिग्नल टाइप की, आउटपुट ऑफ टाइप सिग्नल। This is not a standard UML type such as integer. The internal details of this signal class are relevant to the specification of the incubator monitor class, so it needs to be analyzed further before proceeding to the formal specification. सो यूएमएल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिग्नल टाइप, यहाँ पे हम इसको प्रीवियसली भी अपने टॉपिक में जो है वो इसके बारे में हमने देखा कि सिग्नल हमारा यहाँ पे क्या है। ये बेसिकली एक हमारी यूजर डिफाइंड टाइप है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग। ठीक है, तो इसको हमने इसके बारे में देखा कि इसको किस तरह से जो है वो VDMSL में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, और अब यहाँ पे इसको जो है हम इसकी एक UML स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में ये बताना मकसद ये है कि द सिग्नल दैट मस्ट बी सेंट टू द हार्डवेयर कुड वन ऑफ 3 पॉसिबल वैल्यूज, आइदर इंस्ट्रक्टिंग द हार्डवेयर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, ट्रू, और डू नथिंग। अ टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ नेम्ड वैल्यूज इन ऑफन रेफर्ड टू एज एन एनुमरेटेड टाइप। ठीक है, तो एनुमरेटेड टाइप जो है वो यहाँ पे उसको रेफर कर रहा है। A standard method of making a UML class as an enumerated type is to add enumeration above the type name.
यानी हमने यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड जो इसका मेथड है वो क्या है कि जो आपने टाइप डिफाइन की है उसके ऊपर आप एनुमरेशन को भी यहाँ पे जो है वो एड अप करें। जब हम इसको एड अप करेंगे तो ये किस तरह से हमें दिख रही है कि एनुमरेशन जो है वो सिग्नल टाइप के ऊपर जो है वो एड अप किया उसको, उसके बाद हमारी यूजर डिफाइंड टाइप है जो कि हमारी सिग्नल है, और हमने ये भी देखा कि जो यूजर डिफाइंड टाइप हम जो है वो डिफाइन करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस होगा। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हमारी जो इंक्रीज डिक्रीज और डू नथिंग है ये बेसिकली हमारी कोड टाइप्स हैं, और जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे क्या है, हमारा यूनियन ऑफ कोड टाइप्स, यानी इंक्रीज डिक्रीज और डू नथिंग का यूनियन ऑफ कोड टाइप। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।